ortho meta para position that all are over. Now I'm going to start preparation of haloarene. So see carefully, preparation of haloarene. Haloarenes are prepared by following two methods. हेलोएरेन केवल दो मेथड से प्रिपेयर होता है. फर्स्ट वन इज ES रिएक्शन, that is electrophilic substitution reaction. Remember, this is named as short form ES reaction, as like that was SN reaction. हेलोएल्केन में था SN reaction, यहाँ पर है ES reaction. Both are the type of substitution reaction. I informed you कि substitution reaction is of three types: electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, and free radical substitution reaction. Then after I informed you कि if attacking reagent will be nucleophile, then that will be nucleophilic substitution reaction. Nucleophile मतलब negative charged species, which we had discussed, ठीक है, completely in haloalkane. Now we are going to discuss ES reaction, means that type of substitution reaction in which attacking reagent will be an electrophile. Electrophile means positive charge species. So electrophilic substitution reaction means attacking reagent will be electrophile, or electrophile will be displaced, one electrophile will be displaced the another electrophile. एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा. एंड सेकेंड मेथड इज सैंडमेयर रिएक्शन. सो फर्स्ट मेथड इज हियर, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. You will write the first heading, electrophilic substitution reaction. In this, first of all, you will write the definition for your own information. What is electrophilic substitution reaction? जैसे आपने SN में लिखा था वैसे इसमें कि that type of substitution reaction, that type of substitution reaction in which one electrophile means positive charge species, one electrophile is displace the another electrophile, one electrophile is displace the another electrophile and form a new product, उसमें न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस कर रहा था, इसमें इलेक्ट्रोफाइल. सी AR I had written, it is not organ. AR I had written as a symbol of aromatic compound, that is aryl. ठीक है, AR is written for aryl, that is not organ. Remember this in organic chemistry में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में AR का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सिंबल. और अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाएंगे तो AR मतलब ऑर्गन होता है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ARX लिखा है तो इस मीन्स ये हेलोएरेन की बात कर रहा है, ऑर्गन हैलाइड की नहीं बात कर रहा है. नाउ सी, आप क्या लिखेंगे, दैट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which one electrophile is displace the another electrophile, एक electrophile दूसरे electrophile को displace करेगा and form the product, that is called electrophilic substitution reaction. ठीक है. Then after, अब आप लिखेंगे how you will prepare the haloarene. So see, when any aromatic compound, बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड आपके में एरोमेटिक कंपाउंड है. व्हेन एनी एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विथ हैलोजन, अगेन हियर X मींस क्लोरो और ब्रोमो. यहाँ पे X का मतलब फिर से क्लोरो ब्रोमो है, फ्लोरो और आयोडो नहीं है. क्यों नहीं है वो आगे पता चलेगा. ठीक है. व्हेन एनी एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विथ हैलोजन in presence of Fe means iron as catalyst in a dark condition. Remember this is very important, dark condition ही होना ज्यादा हेल्पफुल रहता है. in dark condition और तो हेलो, ये आपका मेन ग्रुप है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन आके अटैच हुआ, मींस
ऑर्थो कार्बन पे, तो ऑर्थो हेलो, एंड अपोजिट कार्बन पे आकर के अटैच हुआ मीन्स पैरा, देन इट फॉर्म ऑर्थो हेलो एंड पैरा हेलो प्रोडक्ट, ऑर्थो हेलो और पैरा हेलो प्रोडक्ट बनाता है, दोनों बनता है। एंड आउट ऑफ दीज टू पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, पैरा जो होता है ये मेजर होता है मीन्स इट फॉर्म इन मोर अमाउंट एंड ऑर्थो इज फॉर्म इन लेस अमाउंट, दैट इज माइनर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक में जहाँ पे भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है वहां मानते हैं एक मेजर एक माइनर, तो मेजर कोई एक होता है बाकी सारे माइनर माने जाते हैं। तो इसमें मेजर कौन होगा, पैरा। पैरा मतलब मेजर मतलब ज्यादा अमाउंट बनेगा, 85, 90, 95% और 5, 10 या 15% आपका ऑर्थो बनेगा। नाउ व्हाई इट इज फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा, व्हाई नॉट मेटा प्रोडक्ट, बिकॉज इन क्लास 11th you have studied the group, two types of group are there which comes and attach on benzene ring, or after attaching on benzene ring, that is ortho para group and meta, ortho directing group, ortho para directing group and meta directing group। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है वो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाता है, जो मेटा डायरेक्टिंग होता है दैट फॉर्म मेटा प्रोडक्ट विच वी विल डिस्कस थ्रू रिजोनेंस, अभी हम आगे पढ़ेंगे रिजोनेंस के थ्रू। सो द CH3 ग्रुप मीन्स एल्किल ग्रुप, अगर आप उसमें देखेंगे तो इट इज इन आर्थोपैरा ग्रुप। CH3 ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप इज आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बेंजीन पे एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट विल डायरेक्ट द अपकमिंग स्पीसीज एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन, इसलिए जो हैलोजन है वो आर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है, बिकॉज दिस CH3 और एल्किल ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसलिए आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, मेटा नहीं बन रहा है, बट पैरा विल बी मेजर। फिर क्वेश्चन आएगा कि इट फॉर्म द टू प्रोडक्ट आर्थो एंड पैरा, हाउ कैन वी सेपरेट देम आउट, देन आर्थो और पैरा प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर डिफरेंस, आर्थो और पैरा पोजीशन पे मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। नाउ next is there, why this method is only used for chloro and bromo, why not used for iodo and fluoro? Then remember, in this reaction if we will use the iodine, then iodine reaction with this is reversible in nature, इसमें आयोडीन का रिएक्शन अगर कराएंगे क्लोरोब्रोमो की जगह पे, then that iodine के प्रेजेंस में this reaction is reversible। रिवर्सिबल में होता क्या है, this I will be form HI and that HI make the reaction reversible, वापस ये कन्वर्ट कर देता है। To prevent this reversibility we require any oxidizing agent, so with this condition if we will use any oxidizing agent like HNO3 or HiO3, ठीक है, then the reaction with iodine is possible, without oxidizing agent the reaction of iodine is not possible because it form the product, yes it form the product but the reaction is reversible, so it again, ठीक है, move the reaction in backward direction and form the reactant back। so why iodine, Sir, ex sir, explain the backward reaction again. Means how with iodine it reverse. if I2 will be there, then here comes I, here comes I and form HI. This HI is break into H and I, so that H comes back to replace the I again, so it form the I2 back, वापस से H चला जाएगा और I वापस आ जाएगा। But if we will use any oxidizing agent, then that oxidizing agent provide to this, वो and that HI will be convert into HiO3, ये HI कन्वर्ट हो जाता है HiO3 में और HiO3 में
हो गया, then it will not break into H and I, फिर ये H and IO नहीं. हेलो, Yes, is sir. that clear? Clear. Yes, sir. Okay. HI जो बनेगा, this H will break into H plus and I minus, so H plus will be moved at its original position to release the I from there, and I will combine to form. But if oxidizing agent will be there, then that oxidizing agent, आपको जानते हैं oxidizing agent का मतलब provide the oxygen. This oxygen will be taken by HI to convert into HiO3. Now, if HiO3 will be broken down, then it gives the H plus and IO3 minus, not I minus. अब ये I minus देगा ही नहीं, so reaction will be not proceed in backward direction. So, if you will use any oxidizing agent with I, then only you can form the I product here. But if you will not use any oxidizing agent, then product will be formed, but that product will be again converted into reagent. So that's why iodine is not uh, prepared by this method effectively. Now next, why fluoro compound is not prepared by this? So again वही same reaction, same reason कि फ्लोरो फ्लोरीन का रिएक्शन क्या होता है, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, सो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. इट इज हाईली रिएक्टिव, अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि कितना अमाउंट हमको उसमें ऐड करना है. दैट्स वाई फ्लोरो कंपाउंड इज not formed by this method. Now, one more information, as I informed you, कि for aromatic compound dark condition is very effective, but in the place of this, see here it is written sunlight. अगर यही रिएक्शन हम कराएं और यहाँ पे सनलाइट लिख दें और एच न्यू लिख दें, डार्क न लिख करके सनलाइट और एच न्यू लिख के दे दिया, then that halogen will not move at benzene ring. तब वो halogen benzene पे नहीं जाएगा. Halogen will be takes its benzylic position. Halogen benzene ring पे नहीं जाएगा. Then it not form haloarene. जैसा कि कल आपको बताया गया था कि haloarene तभी होता है जब डायरेक्ट बेंजीन पे अटैच हो. जब बेंजीन से CH2 के थ्रू अटैच हो तो वो बेंजाइलिक कहा जाता है, बेंजिल कहा जाता है. सो इफ डार्क कंडीशन विल बी देयर, then it will be attack on benzene ring to form haloarene. But if sunlight will be there, dark condition is not there, all the condition are similar, but sunlight will be there, then it will not attack on benzene ring, it will attack at benzylic position. Benzylic position means the carbon which attach with benzene ring, उस कार्बन पे जाएगा जो बेंजीन रिंग से अटैच है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन पे नहीं जाएगा. सी दिस, इस कंडीशन को याद रखिएगा. अगर वहां पे सनलाइट लिख दिया, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. ये एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है. सी, एरोमेटिक कंपाउंड इज देयर, हैलोजन इज देयर एंड यूवी लाइट इज रिटन. अगर यहीं पे डार्क लिख देता तब हैलोजन आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता, बट डार्क नहीं लिखा है, यूवी लाइट लिखा है. सो हैलोजन विल नॉट मूव एट बेंजीन, इट विल मूव एट बेंजाइलिक पोजीशन. बेंजाइलिक पोजीशन मींस दैट कार्बन विच अटैच विद बेंजीन रिंग. तो ये किस कार्बन पे जाएगा, जो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है, मतलब CH2 वाले कार्बन पे. सो सी द प्रोडक्ट कहाँ पे गया, CH2 वाले कार्बन पे. सो दिस इज बेंजाइलिक पोजीशन. तो आपको ये याद रखना है कि इन डार्क कंडीशन इट इज गिविंग ES रिएक्शन एट एरोमेटिक स्ट्रक्चर, बट इन सनलाइट कंडीशन इट इज गिविंग ES रिएक्शन एट बेंजाइलिक पोजीशन. दोनों ES रिएक्शन है, बोथ आर ES रिएक्शन, बट सनलाइट के प्रेजेंस में वो बेंजीन के कार्बन से ES रिएक्शन नहीं कर रहा है,
बेंजीन से जो कार्बन अटैच है बाहर से उस पे ईएस रिएक्शन कर रहा है बेंजाइलिक पोजीशन पे, बट इन डार्क इट शो ईएस रिएक्शन विद द बेंजीन कार्बन। ये बेंजीन के कार्बन पे ईएस रिएक्शन कर रहा है, तो ये डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो रहा है एंड फॉर्म द हेलोएरेन। डार्क कंडीशन में हेलोएरेन बना रहा है और सनलाइट के प्रेजेंस में बेंजिल हैलाइड बना रहा है। ठीक है, बेंजिल हैलाइड नॉट हेलोएरेन। ये हेलोएरेन नहीं है, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि जब डायरेक्ट बेंजिन पे अटैच होता है तभी हेलोएरेन होता है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय ईएस रिएक्शन। Now by Sandmeyer reaction, second method by Sandmeyer reaction. Now in your NCERT book these two steps are given in Sandmeyer reaction. ठीक है, but in real this first step is not Sandmeyer reaction. First step is diazotization. अमाइन चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसको, लेकिन अब ये आपके सिलेबस से हट गया है। इफ यू विल सी द सिलेबस इन अमाइन चैप्टर तो आपका वहां लिखा हुआ है डिलीटेड पार्ट में डाईएजोनियम एंड इट्स प्रॉपर्टी, डाईएजोनियम सॉल्ट एंड इट्स प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। सो डाईएजोटाइजेशन, ये पहला स्टेप जो है इसका नाम है डाईएजोटाइजेशन। सैंडमेयर केवल ये सेकेंड स्टेप है। Sandmeyer is only second step. First step is diazotization. Here it is given together, but अमाइन वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें सैंडमेयर रिएक्शन हेडिंग दिया है, वहां पर भी इन द प्रॉपर्टी डाइजोनियम की प्रॉपर्टी में। सो सैंडमेयर रिएक्शन केवल ये है। सो हम फिर से बतलाते हैं आपको, वी आर इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरेन बाय द सेकेंड मेथड सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन अगर लिखने को आएगा तो हमको केवल ये लिखना है, लेकिन अगर आएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरेन बाय सैंडमेयर रिएक्शन देन यू नीड टू राइट द बोथ स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द BDH बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। सो व्हेन एनिलीन बेंजीन रिंग कंटेन, कल बताया गया था, ये सब नाम आपको क्लास 11th में मिला होगा। बेंजीन रिंग कंटेन CH3 तो टोलुइन कहते हैं। नाउ बेंजीन रिंग इज कंटेन NH2 अमाइन ग्रुप। बेंजीन रिंग पे अगर अमाइन ग्रुप आता है सो इट इज कॉल्ड एनिलीन। दिस इज एनिलीन। ठीक है, इसका नाम है एनिलीन। रिमेंबर दिस नेम। When aniline react with sodium nitrite and HX, sodium nitrite, nitrate नहीं, NaNO2. See here, the sodium nitrite word is written in the second line. Sodium nitrite here and HX, any mineral acid इन कोल्ड कंडीशन। इसको आप गर्म मत समझिएगा, इट इज नॉट हॉट कंडीशन। 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री से 278 केल्विन मतलब 3 डिग्री। 0 डिग्री से 3 डिग्री ये कंडीशन है, कोल्ड कंडीशन। इसको BHU में हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, बर्फ लिया था, आइस क्यूब्स लिया था एक कंटेनर में, टेस्ट ट्यूब लिया था। एक टेस्ट ट्यूब में पहले हमने ऐड किया NaNO2, पहले 3 टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब में एनिलीन लिया था, एक टेस्ट ट्यूब में NaNO2 लिया था, एक टेस्ट ट्यूब में HX लिया था। तीनों टेस्ट ट्यूब को बर्फ जो आइस क्यूब थे उनके बीच में रख दिया 5, 10, 15 मिनट तक, तो टेम्परेचर डाउन हो गया एंड इट रीच टू दिस टेम्परेचर। अब सबसे पहले इन दोनों का रिएक्शन कराया गया, NaNO2 और HX का आपस में, दोनों टेस्ट ट्यूब को आपस में मिक्स किया गया। जब इनका रिएक्शन हुआ देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaX बना एंड HNO2, HNO2 एंड HX, ठीक है। दिस HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, HNO3 is nitric acid, HNO2 is nitrous acid. Now अब जो नाइट्रस एसिड बना था इसको इस एनिलीन के टेस्ट ट्यूब में मिक्स करके बर्फ में रख दिया गया।
एंड देन सेक इट वेल, और उसको सेक किया गया, तब हमको मिला BDH, बेंजीन डाइहेजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। सो दिस इज कोल्ड कंडीशन, डोंट थिंक कि ये हीट किया जा रहा है, इसमें हमको ठंडा करना है, 273 to 278 और 0 to 5 डिग्री। एंड इट्स नेम इज बेंजीन, सी बेंजीन ये बना है, डाइएजोनियम इज नोन एज N2, N2 को डाइजोनियम करें हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। दिस प्रोसेस टू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या सॉल्ट कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को डाइएजोटाइजेशन कहा जाता है, डाइएजोटाइजेशन। नाउ दिस BDH, बेंजीन डाइजोनियम, ये सैंड मेयर रिएक्शन अब शुरू हो रहा है। तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या है? व्हेन BDH, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड इज treated with cuprous halide, cuprous halide Cu2X2, X की जगह पे देखिए Cl या Br, फिर से वही Cl या Br ही बनेगा, फ्लोरोआइडो इससे भी नहीं बनेगा, Cl और Br। then this whole part is removed out from there, and Cl or Br, whatever is there, that comes and attached to form haloarene, क्लोरो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। Cl रहेगा तो Cl आके अटैच होगा, Br रहेगा तो Br आके अटैच होगा। सो हेडिंग विल बी देयर बाय सैंड मेयर रिएक्शन, यू विल राइट इन दिस कि haloarene is prepared by sand meyer reaction in following two steps. Step 1, in first step, aniline is treated with sodium nitrite and mineral acid in cold condition, 0 to 5 degree centigrade condition, then it forms benzene diazonium halide. Now after this equation, step second, this benzene diazonium halide is treated with cuprous halide, that is Cu2Cl2 or Cu2Br2. Then it form corresponding haloarene, that is chlorobenzene or bromobenzene, and release the N2, और N2 क्या करता है? रिलीज करता है। This is the method for preparation of haloarene. But again, क्लोरो और ब्रोमो, फ्लोरो आयोडो के लिए ये नहीं है फिर से। सो नाउ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरेन इज ओवर। पहला आपको बताया गया ES रिएक्शन से Fe के प्रेजेंस में डार्क में, एंड सेकंड सैंड मेयर में दो स्टेप है, पहले BDH बनाएंगे, फिर BDH का Cu2X2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमको हेलोएरेन मिलेगा। नाउ voice and screen both are clear? Anyone please tell me? Yes, sir. Yes, sir, clear. Okay. Due to weather, I was slightly scared that maybe any problem is there. If anyone will have any problem, then please unmute and inform me कि sir voice or screen something is not clear. So preparation is over. So preparation के बाद क्या आता है? Property. Property में physical property. अभी मैंने आपको बताया है, if you will notice, you have noticed it, then I informed you कि ऑर्थो पैरा में डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट का होता है, ठीक है, पोजीशन के बेसिस पे मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। तो वही चीज यहाँ बता रहा है, इसमें बस ऑर्थो मेटा पैरा ही देखना है, क्योंकि जितने कंपाउंड रहेंगे ऑल विल हैव बेंजीन रिंग, सबके फॉर्मूले में बेंजीन रिंग रहेगा, क्योंकि हेलोएरेन का मतलब हो गया बेंजीन रिंग वहां रहेगा ही, केवल डिफरेंस क्या रहेगा? पोजीशन। ऑर्थो, ये ऑर्थो कंपाउंड है, ठीक है, किसी एक को मेन मान लीजिए तो दूसरा उसका पोजीशन ऑर्थो बन गया, एक को मेन मान लीजिए उसका मेटा बन गया, एंड एक को मेन मान लीजिए पैरा, देन यू कैन सी सबसे कम, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसका है?
सॉरी, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, पैरा का है, और सबसे कम किसका है, ऑर्थो का है। तो इसको याद रखिए कि ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मेटा का उससे ज्यादा होता है, पैरा का सबसे ज्यादा होता है। वैसे यहाँ पे मेटा का कम दे रहा है क्लोरीन के केस में, बट क्लोरीन को छोड़ के कोई और रहता है तो मेटा का ज्यादा होता है। अगर ये पूछेगा वाई, तो रीजन इज यहाँ पे जो रिपल्सन एराइज हो रहा है पोजीशन के कारण, क्लोरीन क्लोरीन पास है तो रिपल्सन ज्यादा है। क्लोरीन क्लोरीन जितना दूर जाएगा, या हेलोजन या कोई और कंपाउंड रहेंगे जितना दूर जाएंगे, रिपल्सन उतना कम रहेगा, तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लोरीन का स्पेशल केस है कि इस केस में मेटा वाले का सबसे कम होता है, अदरवाइज मेटा वाले का मिडिल में आता है। ऑर्थो का सबसे कम, मेटा का उससे ज्यादा, पैरा का सबसे ज्यादा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कभी, लेकिन फिर से सर मैं कर दे रहा क्लोरीन हूँ। के साथ ऐसा एक्सेप्शन क्यों है? क्या चीज? सर क्लोरीन के साथ ऐसा क्यों है? क्लोरीन, आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की उससे कम होती है, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा किस में होगा, क्लोरीन में होगा। ठीक है। यस सर। अब फ्लोरीन में तो अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कम होती है, आयोडीन की उससे कम होती है। ये तो स्पेशल केस आपका है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में होना चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, क्लोरीन की कम, लेकिन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की कम, ड्यू टू साइज। क्योंकि इसमें साइज छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, इसमें साइज बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा हो गई। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जब दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपल्सन वहां पे आपस में ज्यादा होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, the most important and the last part of this chapter, chemical properties of haloarene. When this will be over, chapter will be over. हेलोएरेन की केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, हेलोएरेन शो ओनली 3 केमिकल प्रॉपर्टीज एज हेलोएल्केन वाज शोइंग। हेलोएल्केन में 3 केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भी है, रिएक्शन विथ मेटल इसमें भी है, वहां पे इलिमिनेशन था, यहाँ पे ईएस रिएक्शन है, एंड दिस ईएस रिएक्शन विल बी प्रेजेंट इन ऑल एरोमेटिक कंपाउंड। 3 चैप्टर अभी और आपको पढ़ना है, तीनों चैप्टर में अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, लाइक इसमें हेलोएरेन था, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अल्कोहल फेनॉल ईथर, तो फेनॉल इज एरोमेटिक अल्कोहल, ईथर इज एरोमेटिक ईथर, एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड, कीटोन में एसिटोफिनोन। तो इफ एरोमेटिक कंपाउंड इज देयर, ES reaction is the most important chemical property of aromatic compound. If you will remember class 11th, तो क्लास 11th में जो आपका चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और उसके बाद था एरेन। एरेन की केमिकल प्रॉपर्टी वहां ओपन कर लीजिए, एरेन की केमिकल प्रॉपर्टी में आपका दिया हुआ है ES रिएक्शन, और उस ES रिएक्शन में ये सारा आपका है हेलोजिनेशन। ES रिएक्शन केवल 4 होता ही है, एरोमेटिक कंपाउंड पहला इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये स्पेशल आपको शो कर दे रहा है, एसएन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, ये स्पेशल है, बट एनी any aromatic compound is showing this ES reaction, that is compulsory or essential chemical property of any aromatic compound. I am not saying haloarene, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, मीन्स कोई भी बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड आपको मिलेगा, एनिलीन, टॉलुइन, कोई भी बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड, अगर उसमें बेंजीन रिंग है तो वो ES रिएक्शन शो करेगा। ES रिएक्शन इज द बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और ES रिएक्शन में केवल 4 रिएक्शन आता ही है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये सारा नाम आपको 11th में मिला होगा। हेलोजिनेशन में हमको यहाँ कराना है क्लोरीनेशन, हेलोजन में तो हम किसी से करा सकते हैं, बट यहाँ पे क्लोरीन से कराना है। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन,
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फिर से दो टाइप का होता है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ओवरऑल फिर से समझ लीजिए, हेलो एरेन्स आर शोइंग थ्री केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली, SN reaction, reaction with metal and ES reaction। SN reaction का कोई टाइप नहीं है इसमें, हेलो एल्केन में था SN1 SN2, यहाँ टाइप नहीं है। रिएक्शन विथ मेटल में अगर आप हेलो एल्केन को याद करेंगे तो वहां पे था ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन, यहाँ पर है फिटिग रिएक्शन एंड उर्ज फिटिग रिएक्शन। हेलो एल्केन मींस ओपन चेन वाले के साथ था उर्ज रिएक्शन एंड ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन, यहाँ बेंजीन रिंग वाले के साथ है फिटिग रिएक्शन एंड उर्ज फिटिग रिएक्शन। देखिए कितना नेम रिएक्शन आपको मिल रहा है, 10 नेम रिएक्शन आपके पास हो गया होगा। एंड ES रिएक्शन में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में दो टाइप का पढ़ना है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट दिस वन, रिएक्शन विथ मेटल। आज मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ, टुमारो वी विल स्टार्ट द SN एंड ES। सो रिएक्शन विथ मेटल, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। इफ यू विल सी दिस इज, ठीक है, SN रिएक्शन। अभी SN रिएक्शन नहीं डिस्कस हो रहा है ये, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन विथ मेटल हियर, रिएक्शन विथ metal। I had sent this PDF already to all of you. It is the page number 18. पेज नंबर 18 पे है। सी फिटिक रिएक्शन एंड उड्स फिटिक रिएक्शन। इन हेलो एल्केन आपको बताया गया था कि ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन में मैग्नीशियम मेटल यूज होता है, उड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल यूज होता है। यहाँ पे फिटिक और उड्स फिटिक दोनों में सोडियम मेटल यूज होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ सी, व्हेन फिटिक की बात कर रहे हैं, व्हेन 2 mole of haloarene or when any haloarene कर दीजिए, when any haloarene react with sodium metal in presence of dry ether। तो वहां पे हेलो एल्केन में क्या हो रहा था, हेलो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, उड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो NaX मैंने बताया निकल के चला जाता था एंड R आर कंबाइन, ये आपको उर्ज रिएक्शन बताया गया था। वहाँ हेलो एल्केन लेते थे तो आर कंबाइन हो रहा था, यहाँ हेलो एरेन लेंगे तो बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग, एक्स विल बी मूव, बेंजीन एंड बेंजीन विल बी कंबाइन। और बेंजीन और बेंजीन जब कंबाइन होते हैं तो जो बनता है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, C6H5 है, क्योंकि एक X उस पर लगा हुआ है, C6H5X है। दो C6H5 आपस में कंबाइन होंगे तो C6H5 को यस्टरडे आई इन्फॉर्म्ड यू इट इज कॉल्ड फेनिल, इसको फेनिल कहते हैं, बेंजिल नहीं। बेंजिल में CH2 अलग से लगा होता है, मैंने बताया था। C6H5 is called phenyl and two phenyl are combined together, so this compound is called diphenyl और बाईफेनिल। इसका नाम है डाईफेनिल और बाईफेनिल। फिटिक रिएक्शन में बस यही बनेगा, कुछ और नहीं बन सकता है। उस रिएक्शन में तो कोई भी एल्केन ले सकते हैं, यहाँ केवल बेंजीन ही लेंगे और जब भी कंबाइन होंगे तो केवल बेंजीन बेंजीन ही कंबाइन होगा, कुछ और कंबाइन नहीं होगा। सो व्हेन हेलोएरेन react with sodium in presence of dry ether, then it form diphenyl और बाईफेनिल। तब ये डाईफेनिल और बाईफेनिल बनाता है। दो एरिल ग्रुप आपस में ज्वाइन होते हैं, डाईफेनिल और बाईफेनिल, इसका नाम है डाईफेनिल और बाईफेनिल, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन, इसको कहते हैं फिटिक रिएक्शन। देखिए, इफ वी विल टेक 2 हेलो एल्केन तो ये उर्ज रिएक्शन हो गया, एंड इफ वी विल टेक 2 हेलो एरेन देन इट इज फिटिक रिएक्शन। तो हेलो एल्केन के लिए उर्ज रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन इज फॉर ओपन चेन कंपाउंड एंड फिटिक रिएक्शन इज फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। सो व्हेन any haloarene react with or treated with sodium in presence of dry ether, then it form diphenyl और biphenyl, तब ये डाईफेनिल और बाईफेनिल बनाता है। दिस इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन, इसको कहते हैं फिटिक रिएक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट, अब वुड्स फिटिंग, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे नाम को मैच करेंगे आपको मिल जाएगा। वुड्स रिएक्शन हैलो एल्केन के लिए था, फिटिग रिएक्शन हैलो एरेन के लिए था। अब ये दोनों नाम कंबाइन हो गया, so now these two will be react together. So when haloarene and haloarene, see, an alkyl halide and an aryl halide, when an alkyl halide and aryl halide react with sodium in presence of dry ether, तो फिर से वही फॉलो करेगा, X will be go with Na, तो इसमें दो बेंजीन रिंग बच रहा था तो अटैच हो जा रहा था, इसमें दो आर बच रहा था तो अटैच हुआ था, इसमें एक बेंजीन रिंग एक आर है तो ये बनाएगा बेंजीन रिंग पे आर, आर आके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एल्किल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड एल्किल बेंजीन। फिर से थोड़ा सा लॉजिक है, वुड्स रिएक्शन एल्केन के लिए है, आर आर कंबाइन होकर एल्केन बनाते हैं। फिटिक रिएक्शन एरोमेटिक के लिए, बेंजीन बेंजीन कंबाइन होकर के बाइफेनिल बनाते हैं। एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन, इसमें एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, व्हेन वन एरोमेटिक एंड वन एलिफेटिक halide is react with sodium in presence of dry ether, then it form alkyl benzene, इसका नाम होता है alkyl benzene। This reaction is called Wurtz-Fittig reaction। नाम से याद रखिए, Wurtz reaction RR कंबाइन होगा, एल्केन के लिए है। फिटिग रिएक्शन AR कंबाइन होगा, बाइफेनिल बनाएगा, और वुड्स फिटिंग, एक वुड्स एक फिटिंग, एक वुड्स RX हो गया, एक फिटिग ARX हो गया और बनाएगा R एंड AR, एल्किल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन। सो फिटिग रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गया। सो रिएक्शन विथ मेटल इज